We are doing exercise 6.3, triangle, different conditions we already told to you people. And I think we have completed up to question number 6. Now I coming to question number 7. I am asking the answers from you people. ABC triangle, DE here, BE joint, DC joint. ये तो करा दिया था. This I have completed this question. I am making the next figure. Okay, sorry. सर ये नहीं कराया था. ये करा दिया था ये. सर 6 तक ही हुआ था. हाँ 6 वाले ही तो फिगर बना रहा था मैं. I am telling a 7 question figure. I am making this figure. This is A, B, C. AD is the altitude. CE is another altitude, 90-degree angle. Please listen the question carefully. Altitude AD and CE of triangle ABC intersect at each other at P. ये point P है. Show that first. First you show me triangle AEP similar to triangle CDP. Second, you show me triangle ABD similar to CBE. और थर्ड है triangle AFP similar to triangle ADB. और फोर्थ है triangle PDC similar to triangle BEC. Tell me. First AEP similar to CDP. ये दोनों ट्राइंगल क्या दोनों सिमिलर हैं? I can take this angle 1 and 2. Anyone can tell me these two triangles? I name it 1, 2, 3 और इस एंगल को मैंने 4 ले लिया. आप देख सकते हो ये एंगल 4 है जहां AD परपेंडिकुलर हो रहा है ना. ये एंगल 4 है, ये 2 है, दिस इज 1, दिस इज 3. टेल मी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? यस. Very simple it is. You can write angle 1 is equal to 2 vertically opposite angle. Second, you can write angle 3 is equal to 4, each 90. This implies triangle AEP similar to triangle CDP by A similarity condition. ये A similarity condition से दोनों triangles क्या है? Similar है. You are taking my point? What will be the second? Second कह रहा है ABD और CBE. मैं इस एंगल को 5 लेता हूं, आप 4 लिया, ये 5 और ये मैं एंगल लेता हूं 6. यस, एनीवन? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 is equal to angle 6 है और एंगल B कॉमन है. एंगल B is common. Angle B is equal to angle B common angle. Angle 5 is equal to 6. Each 90 degree. So triangle ABD similar to triangle CBE. Very simple. मैंने ये दो करा दिए हैं, दो आप अपने आप कर लेना. ऐसे ही आपको एंगल्स बनाने और दो एंगल्स मैं आई एम टेलिंग यू नो वन थिंग कि आप मैक्सिमम क्या यूज कर रहे हैं.
ए सिमिलरिटी कंडीशन को यूज कर रहे हैं, दो एंगल्स को इक्वल कर रहे हैं और ट्राइंगल्स को सिमिलर कर रहे हैं। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 7. ये दो 2 आर होमवर्क फॉर यू पीपल. I am coming to question number 8 now. Please note down this one. Note down. Not so hard this question, very simple question. दो एंगल आपको इक्वल निकालना है और उनको क्या करना है, ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. इसलिए I don't want to waste the time in these questions. I am taking some very important question. E is the point on the side AD produced of the parallelogram ABCD. This is a parallelogram. A, B, C, D. E is a point on the side AD produced. I take this point is E. Of a parallelogram ABCD and B intersects CD. और BE को CD को जो इंटरसेक्ट कर रहा है at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. ये ट्राइंगल ABE और CFB, बताइए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? टेल मी. एनीवन? आशीष मिश्रा. Ashish Mishra, are you in the class? Yes, sir. Tell me these two triangles Yes, are similar. Tell me. You can say angle A is equal to angle C, opposite angle of a parallelogram. ठीक है? ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे ही. Am I right? Yes, sir. सर EF और FB भी इक्वल होंगे. मैंने आशीष से पूछा है. आशीष, नाउ यू टेल. अनदर एंगल, कौन सा एंगल इक्वल होगा? ABE CFB. sir. Angle EEB is equals to angle CBF. हाँ, you can Alternate say angle. angle 1 or angle 2. What you will say now? Angle 1 is equal to 2. These are alternate angle. ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. एंगल 1 is equal to 2 होगा. This implies triangle ABE similar to triangle CFB by A similarity condition. A similarity condition से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी बेटा? सिमिलर होगी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. All of you understood this one? सबको समझ में आया ये? Have you noted? Yes, sir. Noted, sir. Yes sir, noted. Okay. I will do the next one. देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं सिमिलरिटी कंडीशन कैसे लगा रहा हूं? कोई बता सकता है कौन सी कंडीशन लगा रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन? दो एंगल इक्वल कर देता हूं. दो एंगल इक्वल कर देता हूं और ट्राइंगल्स को क्या कर देता हूं? सिमिलर करता हूं. सबसे बेस्ट वे है ये. राइट सर? Yes sir. I am coming to question number 8. This figure is given here 6.39. A, B,
P and C. The figure is given like this. ABC, right angle at B, and AMP is right angle at this. ये right angle यहाँ पे, ये right angle, दो triangles हैं, दोनों right angle triangles हैं. Prove that triangle ABC similar to AMP. कोई बता सकता है कैसे? ये दोनों एंगल M इक्वल टू एंगल B है 90 डिग्री और एंगल A कॉमन है। ऐसे मत बोला करो बेटे, आप इसको तो 1 रख लो, इसको क्या लिख लो, 2 रख लो, एंगल का नाम रखिए। आप ऐसे मत बोलना B इक्वल टू M, B कौन सा एंगल, ये या ये, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। या आप पूरा बोलो एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMC, या आप नाम रख दो उसका, सिंपल सा 1 और 2 रख दीजिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच 90, और एंगल A इक्वल टू एंगल A, दिस अ कॉमन एंगल, so you can say triangle ABC similar to triangle AMP by A similarity condition. अच्छा, अब इसी के अंदर आप साइड का रेशियो, दिस एम्प्लाइज व्हाट यू कैन से AB अपॉन AM must be equal to BC upon MP is equal to AC upon AP, AC upon AP. ये तीनों बाई CPST, इसको हम किससे बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसमें से क्या बोला है उसने, क्या प्रूव करना है, ये 2 लिया है उन्होंने, और आई कैन राइट ये AC CA अपॉन PA must be equal to BC upon M। भाई ये दोनों ही तो इक्वल नहीं है, ये भाई CPST है। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और नॉट। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। Please note down. I am coming to question number 9. 9 we have done. Question number 10 now. Question number 10. Question number 10, CDGH respective to the bisector of angle ACB, EGF such that D and L lie on the side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG. EF या E हालत को EFG. CD and GH are the bisector. CD and GH are the bisector of angle these. If triangle ABC is similar to ABC is similar to FEG, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है।
और ये थर्ड एंगल तो है ही। शो दैट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। शो दैट CD अपॉन GH is equal to AC upon FG। How? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। A इक्वल टू F होगा, एंगल A इक्वल टू F होगा CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भाई ABC FEG के सिमिलर है। तो ये A एंगल किसके इक्वल होगा? F। और ये एंगल मैं इसको 1 मान लेता हूं, 1, और इसको मान लेता हूं क्या? 2। आई कैन से एंगल 1 इक्वल टू 2। वाई? एंगल C इक्वल टू एंगल G। दिस एम्प्लाइज देयर हाफ इज आल्सो इक्वल। अरे C और G इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। So I can say triangle ACD similar to FGH by asimilarity condition। और इससे क्या मिलेगा? ये मिलेगा दिस एम्प्लाइज बाई CPST। By CPST you can write this, right sir? आपने ये दो छोटी वाली ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या कर दिया? सिमिलर प्रूव कर दिया। और जब दोनों को सिमिलर प्रूव करोगे तो अपने आप ये कंडीशन अपने आप आ जाएगी बाय CPST। इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल कर देना। आलू भी अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. अच्छा दूसरा, क्या ये ट्रायंगल दिस वन और ये वाले ये सिमिलर है क्या? यस इधर सर। ये भी आप सिमिलर, बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। एंगल B इक्वल टू एंगल E बाई CPST। और इसको आप ले लेना 3 और ये ले लेना क्या? 4। 3 इक्वल टू 4। वो तो आप उससे बता सकते हैं एंगल C इक्वल टू G तो हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। ये थर्ड वाला तो मैंने पहले ही प्रूव कर रखा है। व्हाई इज आस्किंग द थर्ड पार्ट? आई डोंट नो। थर्ड पार्ट देखो जरा, प्लीज सी द थर्ड पार्ट। प्लीज सी द थर्ड पार्ट। Yes, sir. थर्ड पार्ट तो मैंने पहले ही कर दिया ना, उन दो ट्रायंगल को सिमिलर। यस सर, तो फिर हो मैंने गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल किया है। Yes, sir. दैट वी हैव ऑलरेडी डन। प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 10। 2 ही पार्ट करना, थर्ड पार्ट तो पहले को प्रूव करने के लिए थर्ड पार्ट किया मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन दिस क्वेश्चन 11। आई एम टेलिंग यू द 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू यू पीपल। उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना। एक तो आज कराऊंगा और एक क्वेश्चन जो है ना, अगर मेरा पीरियड आगे आया तो उस क्वेश्चन को कराऊंगा। इस एक्सरसाइज को अभी खत्म नहीं करूंगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं। 2 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है जो मैं ले रहा हूं आपके सामने। राइट सर?
पहला क्वेश्चन, अभी टाइम है तो मैं इसको खत्म करा दूंगा आज। इस क्वेश्चन को आई विल आस्क फ्रॉम यू पीपल ओनली। I am telling this, I am taking this triangle ABC and triangle PQR. And this is the median I am telling, taking median AM. AD and PM. These are the two medians. And what is given? Listen it. AB upon PQ must be equal to BC upon QR must be equal to AM upon PM. ये दिया हुआ है, AD upon PM, सॉरी। उसने कहा है AB और BC और AD प्रपोर्शन क्या है किसके? PQ, QR और PM। और ये मीडियंस है, दोनों मीडियम, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये गिवन है। यू हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बताइए प्लीज, अप्लाई योर माइंड एंड टेल टू मी, कैन यू प्रूव दीज टू ट्रायंगल सिमिलर? सर इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। है, कंस्ट्रक्शन होगी। मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता। सर मैं बताऊं? नहीं, साधना नहीं। मेलविन, कैन यू टेल? यस सर, कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा। नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन चाहता ही नहीं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या आ रही है यार? व्हाट इज द यूज? कंस्ट्रक्शन से कुछ भी नहीं होगा इसमें। कंस्ट्रक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रगति, एनी टाइम? प्रगति, आर यू इन द क्लास? यस सर। कैन यू टेल? सर कंस्ट्रक्शन मेथड ही एप्लीकेबल होगा इसमें। कंस्ट्रक्शन होगी क्या? अरे कंस्ट्रक्शन होगी क्या इसमें? मनाली, इसमें कंस्ट्रक्शन होगी क्या? यस सर, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। इप्सिता, रेशियो से हो जाएगा। हो जाएगा बिना कंस्ट्रक्शन के? यस सर। सर गिवन रेशियो से हो जाएगा। और ये गिवन है। सर मैं बताऊं क्या? साधना, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी क्या? नो सर। भाई ये ना साधना कंस्ट्रक्शन कर रही है, ना इप्सिता कंस्ट्रक्शन कर रही है, और विनीशा पता नहीं कंस्ट्रक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। विनीशा अग्रवाल, यस सर। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इसमें? नो सर। हो जाएगा बिना कंस्ट्रक्शन के? यस सर। आ गया आपको? सर ट्राई कर रही हूँ। मानवी जैन, आर यू इन द क्लास? शो कर रहा था हैं? प्रूव करना सर, क्या शो करना था? ABC सिमिलर टू PQR। इनको प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर, दैट्स ऑल। एनीवन? सर मैं बताऊं? हाँ सर, अब तो हो जाएगा ये सर, बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाएगा। हाँ मेलविन, यस बोलो। सर गिवन रेशियो सर बीच में सर वो मीडियन है, तो सर दोनों ट्रायंगल को सर लेके कर सकते हैं सिमिलर। कैसे बोलो? सर जैसे AD मीडियन है तो सर वो दो ट्रायंगल में बट गया सर। हाँ फिर?
फिर सर नेक्स्ट में भी सर उसमें गिवन रेशियोज को लेके सर अगर कंपेयर करेंगे तो सर हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा बेटा, आपको यू हैव टू टेल बेटा। ऐसे आशीष, आशीष मिश्रा, Yes, sir. कैसे होगा? आशीष होगा, कैसे होगा? Sir, given ratio से ही होगा, साइड से। नहीं, गिवन रेशियो तो ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, और ए डी अपॉन पी एम है, बस ये दिया हुआ। इससे क्या ए बी ऐसे है? हैं? अच्छा, एक बात मेरे को बता सकते हो, ये रेशियो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर गिवन है ना बेटा? ये रेशियो गिवन है ना? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को 2 बी डी नहीं लिख सकता, और 2 क्यू एम, भाई डी मिड पॉइंट है ना, एम मिड पॉइंट है, बी सी और डबल ऑफ बी डी, क्यू आर इज डबल ऑफ क्यू एम, राइट? ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी डी अपॉन क्यू एम। मैंने यहां तक निकाल दिया, अब क्या करूं आगे? ये इसके भी बराबर है, इसको भी लिख लो, ए डी अपॉन पी एम यहां पे है, इसको भी लिख लो ए डी अपॉन पी एम, ये तो गिवन है ना बेटे, और ये भी आ जाएगा ए डी अपॉन पी एम। इन 3 रेशियो से इक्वल होने से क्या मिला? सर ट्राइंगल। क्या मिली? सर ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू पी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई एस एस एस। तीनों साइड ये छोटी वाली ट्राइंगल सिमिलर हो गई, और यही मैंने सिमिलर करनी थी, क्योंकि मेरे को इससे क्या मिला, मेरे को एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीएसटी। एम आई राइट? यस सर। और फिर उसके बाद एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर कर सकते हो आप, कर सकते हैं ना? अब क्या ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो गिवन है, और एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू हमने पहले प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर बाई एस से एस। अरे ये दो रेशियो इक्वल है, और इनके इंक्लूडेड एंगल हमने इक्वल कर दिया, तो ट्रायंगल क्या हो गई बेटा? सिमिलर हो गई एस एस, सिमिलर बाई एस एस कंडीशन। इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन की। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। नोटेड। पहले मैंने इन दो छोटी वाली ट्रायंगल्स को सिमिलर किया, इससे मैंने b इक्वल टू क्यू कर दिया, और जब b इक्वल टू क्यू हो गया तो बड़ी वाली ट्रायंगल अपने आप ही सिमिलर हो गई बाई एस एस। वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। ओके बेटा, दीज क्वेश्चंस यू प्लीज डू